अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश को लेकर अब तक सरकार से सवाल पूछने की गोदी मीडिया को हिम्मत नहीं आई। मोदी यहाँ पर खड़े हुए हैं और नीचे शायद कैमरामैन बैठा होगा, तब जाकर इस तरह का कैमरा एंगल बन रहा है। वो जो कैमरामैन मोदी जी के नीचे खड़े होकर फोटो ले रहा होगा, वीडियो बना रहा होगा, उससे मोदी जी कह नहीं सकते श्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफा देने की मांग करता हूँ। हादसों को नहीं रोक सकते तो सरकार किस चीज के लिए है? मोदी ने घायलों से बात की, मोदी घटनास्थल पर गए, मोदी मीटिंग ले रहे हैं, तो मोदी मीटिंग ले रहे हैं, मोदी घटनास्थल पर गए। और मोहब्बत की हुंदी चलिया जीनू जी हुंदी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਟੇਕ ਆਫ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 300 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬੜੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਗੂਸ ਬੰਪਸ ਆ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਅਪਸੈਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿੱਧਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖਬਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਪਲੇਨ ਸੀ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸੌ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਿਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1:38 'ਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80 ਜਿਹੜੇ 60 ਜਾਂ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਮਕੁਮ ਬਿਨਵਾਲ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ CM ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਰਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਉਡਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ 1200 ਜਾਂ 1500, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਪਰ ਜੋ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਇਹ ਏਅਰਲਾਈਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਡਈਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡਿਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੂਅਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਰਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਈਂਧਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖੀਏ। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश को लेकर अब तक सरकार से सवाल पूछने की गोदी मीडिया को हिम्मत नहीं आई, लेकिन ये मामला इतना बड़ा है क्योंकि इस मामले में न केवल भारत के बल्कि विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, और अब इस मामले में US और ब्रिटेन की टीम्स भी आने वाली हैं। इसीलिए ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि भारत सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो क्या ये माना जाए कि ऐसा करके भारत सरकार ये मान रही है कि उसकी तरफ से ये चूक हुई है? और अगर इतनी बड़ी चूक हुई है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कोई मंत्री इस्तीफा देगा या स्वयं प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा देंगे? दोस्तों, मोदी के इस्तीफे की मोदी इस्तीफा नहीं दे सकते, मैनू नहीं लगता, नहीं देंगे। मांग भी उठने लगी है। किसने की है मोदी के इस्तीफे की मांग, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन इस वक्त की बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर मैं आपके सामने रख देती हूँ दोस्तों। NDTV के हवाले से मीडिया में खबर चल रही है, टेलीग्राफ ने भी खबर छापी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों। ये खबर बताती है कि 7878 विमान जो कि क्रैश हुआ है, फिलहाल भारत ये विचार कर रहा है कि हो सकता है कि इस विमान को उड़ान भरने से रोक दिया जाए। अमेरिकी कंपनी बोइंग का ये विमान है। कहने को तो ये अत्याधुनिक माना जाता है, बहुत शानदार माना जाता है, बहुत ही खर्चीला विमान है ये। 2100 करोड़ के आसपास इसकी कीमत है। जी हाँ, 2000 करोड़ से ज्यादा का ये विमान है, और इसको आकाश का राजा और पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं, NDTV के हवाले से कई जगह ये खबरें छपी हैं कि सिक्योरिटी रिव्यू के लिए ये जो विमान है ड्रीमलैंडर 787, इसको फिलहाल के लिए ग्राउंड किया जा सकता है।
मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो विमान है एयर इंडिया इसको यूके, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि 787 ड्रीम लाइनर को फिलहाल के लिए ग्राउंड करके ये चेक किया जा सकता है कि आखिर क्या कोई तकनीकी खामियां इसमें हुई। अगर आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, और इस वीडियो के पीछे मैंने बहुत ही गहरी रिसर्च करके आपको बताया है कि कैसे अमेरिका में बना अमेरिकी कंपनी बोइंग का ये विमान पिछले हाल के सालों में बहुत सारी शिकायतों का सामना इसने किया, और 2 विसल ब्लोअर कंपनी के अंदर से निकले जिन्होंने शिकायत की कि बोइंग जो कंपनी है वो अनियमितताएं बरत रही है, अपना खर्चा बचाने के लिए कुछ इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जिसके बाद कंपनी के खुद के इंजीनियर्स, उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी थे वो सामने आए थे। लेकिन अब ये मामला इतना बड़ा हो चुका है दोस्तों कि अब खबर आ रही है कि भारत सरकार एक फैसला ले सकती है कि फिलहाल ड्रीम लाइनर 7878 के जितने भी विमान हैं जो एयर इंडिया इस्तेमाल करती है उन सबको ग्राउंड कर दिया जाए। दोस्तों तो बड़ा सवाल ये है कि ये सब 265 लोगों के शवों को देखने के बाद लिया जाना था क्या फैसला, क्योंकि दोस्तों बोइंग कंपनी जो है उसको लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी, और अब ਯਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਟੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਵੀ ਜਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਜੜ ਗਏ। जो दैनिक भास्कर ने खबर छापी है वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ दोस्तों। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी सनत कौल ने एक न्यूज एजेंसी INS से बातचीत करते हुए बताया है कि एयर इंडिया को कई बार उन्होंने लेटर लिखा था इसको लेकर। दोस्तों इन्होंने बताया कि DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयर इंडिया को कई बार इस बाबत लेटर लिखा। मतलब DGCA, अब आप समझ लीजिए कि DGCA वही काम करता है एविएशन सेक्टर में जो व्हीकल्स के लिए RTO करता है। तो DGCA इस बारे में एयर इंडिया के इस विमान को लेकर कई बार लेटर लिख चुका था एयर इंडिया को, और इसमें सिक्योरिटी, गलत से चेकिंग और अन्य खामियों से जुड़ी बातें बताई गई थी। मतलब आप सोचिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी कह रहे हैं कि DGCA एयर इंडिया को खत लिख चुका था कि ये जो आप विमान इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें सिक्योरिटी, गलत तरह से चेकिंग और खामियां हैं। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि एयर इंडिया ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। और अब जब भारत सरकार कह रही है कि फिलहाल जितनी भी ड्रीम लाइनर ये जो विमान है 7878 उनको ग्राउंड किया जाएगा, तो क्या इंतजार किया जा रहा था इतने बड़े हादसे का? DGCA अगर पत्र लिख रहा था दोस्तों तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक्शन नहीं लेना चाहिए था क्या कि DGCA लगातार एयर इंडिया को पत्र लिख रहा है और एयर इंडिया इस पर ध्यान नहीं दे रही है, ठीक से मेंटेन नहीं कर रही है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं नहीं कह रही हूँ कि एयर इंडिया मेंटेन नहीं कर रही थी, ये बात इसमें लिखी गई है कि DGCA पत्र लिख रहा था एयर इंडिया को इस विमान के मेंटेनेंस के लिए। तो फिर DGCA को ये भी बताना चाहिए कि क्या उसको जवाब मिला, एयर इंडिया ने जवाब दिया तो क्या वो सेटिस्फैक्टरी जवाब था, और अगर सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं था तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया। दोस्तों अभी ये भी जानकारी नहीं है कि अगर इसको ग्राउंड पे रखा जाता है, इसको उड़ने नहीं दिया जाता है, तो ये कब तक रखा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा किया जाता है तो ये अपने आप में क्या नहीं बताता है कि ये काम पहले हो जाना चाहिए था। कितनी हैरान करने वाली बात है दोस्तों। और उस पर भी देखिए देश में नीलबट्टा सन्नाटा है, कोई सवाल पूछने को राजी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उनके यूट्यूब चैनल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल में अगर आप जाएंगे तो उन्होंने खुद ये वीडियो पोस्ट की है। प्रधानमंत्री ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं, वहां हालात का जायजा लेते हैं। जरा आप कैमरा एंगल देखिए, मोदी यहाँ पर खड़े हुए हैं और नीचे शायद कैमरा मैन बैठा होगा, तब जाकर इस तरह का कैमरा एंगल बन रहा है। वो जो कैमरामैन मोदी जी के नीचे खड़े होकर फोटो ले रहा होगा, वीडियो बना रहा होगा, उससे मोदी जी कह नहीं सकते थे कि ये कोई मौका नहीं है इस तरह की वीडियो बनाने का। उसके बाद मोदी घायलों से मिलते हैं, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद मोदी मीटिंग वगैरह लेते हैं अधिकारियों से, ये भी अच्छी बात है। सबकी वीडियोस मोदी ने अपने यूट्यूब चैनल में शेयर की है। तो सब कुछ सामने आकर स्वयं मोदी जी ही कर रहे हैं, तो फिर सवालों का जवाब कौन देगा? मोदी देंगे या उन्हीं की सरकार का नागरिक उड्डयन मंत्रालय देगा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय की कोई तो जिम्मेदारी है ना। अगर इस देश का नागरिक हवाई सफर करने में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है
तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज मैंने आपको ये वीडियो भी दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एयर इंडिया को लेकर हाल के दिनों में बहुत शिकायतें आई हैं। इस विमान के अलावा भी एयर इंडिया को लेकर बहुत शिकायतें आई है, जिसमें अलग अलग टाइम में लोग बता रहे हैं कि कहीं सीट टूटी हुई है, कहीं एसी काम नहीं कर रहा है। खुद मोदी जी के मंत्री, मोदी जी के कैबिनेट के सहयोगी शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले फरवरी में एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि एयर इंडिया के विमान में वो सफर कर रहे थे और उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो मैं तो हैरान हूं दोस्तों कि ये सब कुछ भारत सरकार के सामने हो रहा था और भारत सरकार कर क्या रही थी। दोस्तों अब इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बीजेपी के पूर्व सांसद हैं और मोदी जी के घोर आलोचकों में से एक हैं, उनका कहना है 1950 के दशक में जब रेल पटरी से उतर गई थी तब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। उसी नैतिकता के आधार पर मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफा देने की मांग करता हूं ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। मोदी और उनके साथी अब तक जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है जिसे रोकना होगा। दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी की बहुत सी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन बात तो बहुत सिंपल सी है ना, किसी की तो जवाबदेही होगी। इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या हम बस ये बोलकर टाल सकते हैं जैसे अमित शाह ने बोल दिया कि हादसों को तो हम कैसे रोक सकते हैं? हादसों को नहीं रोक सकते तो सरकार किस चीज के लिए है फिर? हादसों को हमें रोकना होगा दोस्तों हादसों को नहीं रोकेंगे तो 265 लोग मारे जाएंगे, बेमौत मारे जाएंगे। इस तरह की बात आप नहीं कर सकते सत्ता में रहकर। दोस्तों अब पूरी की पूरी मीडिया में छाया हुआ है कि ये जो ड्रीम लाइनर है, इससे पहले भी इसकी तकनीकी खामियों को लेकर इसकी शिकायतें आ चुकी हैं। अलग अलग जगह आर्टिकल्स छप रहे हैं, आपको जनसत्ता में भी मिल जाएंगे, आपको भास्कर में मिल जाएंगे, आपको आज तक में मिल जाएंगे। बड़ा सवाल ये है कि ये वेट किस चीज का करते हैं? ये जो आर्टिकल्स छाप रहे हैं अब लोग, या फिर जो तकनीकी खामियों का जिक्र कर रहे हैं, ये कोई घटना होने का इंतजार करते हैं क्या? चलिए मीडिया से तो हमें कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन भारत सरकार से तो हम उम्मीद कर सकते हैं। देश चलाने का काम भारत सरकार का ही है ना। इतनी बड़ी चूक हुई है दोस्तों, इतनी बड़ी चूक, और अब तक नागरिक उड्डयन मंत्री क्या कर रहे हैं? रील बनाकर पोस्ट कर रहे हैं। और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? घटनास्थल का दौरा करके कह रहे हैं कि हादसों को हम कैसे रोक सकते हैं। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? घटनास्थल पर जाकर अपने साथ कैमरामैन ले जाकर वीडियो पोस्ट करके मामले को खत्म कर रहे हैं। दोस्तों हाल के दिनों में ना एक नया चलन आ गया है, जब भी इस तरह की कोई दुर्घटना होती है, मोदी जाते हैं घटनास्थल पर, वो हालात का जायजा लेते हैं, फोटो वगैरह खींची जाती है। मोदी ने ली बैठक, मोदी घटनास्थल पर गए। अब मोदी आज जब सुबह गए घटनास्थल पर, आप यकीन नहीं करेंगे करीब 3.5-4 घंटे न्यूज चैनल पर यही चला है। मोदी ने घायलों से बात की, मोदी घटनास्थल पर गए, मोदी मीटिंग ले रहे हैं। तो मोदी मीटिंग ले रहे हैं, मोदी घटनास्थल पर गए, बात खत्म हो गई। दोस्तों मोदी घटनास्थल पर अगर जाते हैं, मीटिंग लेते हैं, तो उससे क्या सवालों के जवाब मिल जाते हैं क्या? ऐसे दिखाया जाता है कि मोदी का मीटिंग लेना और घटनास्थल पर जाना ही मामला खत्म हो गया, बस फुल एंड फाइनल हो गया। अब जब प्रधानमंत्री मोदी खुद स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठकर मीटिंग ले रहे हैं, तो क्या जवाबदेही उनकी नहीं बनती है? ये जो पोर्टफोलियो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ये उनके सबसे इंपॉर्टेंट सहयोगी चंद्रबाबु नायडू के पास है। कौन सा जवाबदेह है इसके लिए? 265 लोगों की जान गई है दोस्तों, जिसमें 50 ब्रिटिश के नागरिक हैं, 7 पुर्तगाली नागरिक हैं, 1 कनाडाई नागरिक हैं। इस देश के वो मासूम बच्चे हैं जो मेडिकल कॉलेज में आराम से बैठकर हॉस्टल में अपना मेस में खाना खा रहे थे। और ये सब कुछ क्यों हुआ है? हमारे पास 24 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया, कोई जवाब नहीं है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर गाइस। ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚੱਕੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਬੜੇ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਖਾਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਲਿੰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, 1 ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੋ ਮੰਥਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੂਪ ਹੋਲ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਧਰ ਬਣੇਗਾ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇਤਾ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੇਸ ਜੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਠੇਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਊਂਗਾ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਲੇਨ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਰ ਜਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਗਈ, ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੋਇੰਗ 787 ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਸ ਅਸੀਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।